Hello students, welcome back to my channel. You are watching Didactic Dharika, and in this class, we're going to discuss some questions to find out the magnitude of the vectors. So for the quick introduction, we should know the importance of the vector in our day-to-day life. We cannot go along with the life without vectors because vectors gives us directions. Okay, wherever we are going, we need directions. Without directions, we cannot go. So that is why vectors plays a vital role in terms of the mathematics. So this is your exercise 10.2, and first question is comes in front of you like compute the magnitude of the following vectors. So our first vector is this. Okay, you have to find out the magnitude of the vector A. So for understanding this, we have to quickly note down some notations of the magnitude. For the magnitude, this is the notation. Okay, you have to put two bars, one in front of the A and one behind of it. And then there on the right hand side, I've written the formula. For example, if your vector x iota plus y j cap, we call it usually j cap plus z k cap is equals to, we know that this is equals to the mod of this vector is equals to under root x square plus y square plus z square. So the same thing we are gonna inculcate in this question. Here coefficient is 1, 1 and 1. We know this. So quickly start to do right from the formula. We know that our x is equals to 1 here. According to the question, y is also 1 here and z is also 1. Okay, just because if it's a beginning, I'm writing it, and you know that the coefficients are these values from this given vector. So quickly write it. X is equals to 1 square, again y square 1 square, and z square, sorry, 1 square. Okay. So now you can write it 1 plus 1 plus 1 and then it is root. So this is the magnitude of the vector this. Again, do this. We have to find out the vector of B, magnitude of the vector B. So your x is 2, so you will put the 2 square. And here your y is minus 7, so put it square of that. And here z is minus 3, then put the square of that. Now you have to solve it quickly. 7 7s are 49, 3 3s are 9. So you just add it up. It is your 62 root. And you know that there is no on the root of the 62, you know. So just leave the answer right here. Your next question, you have to find the magnitude of the vector C here. Put the bars. And according to the formula, we're going to put the squares of x. The value of x is 1 over root 3. And here the value of y is again same, and for the z also it's same. So we will remove that. We know that if we find out the square of root, the square of the root 3 is basically, how is it 3? Because the root means the power half, and you're going to multiply it and you're going to raise the power 2 of that. So for that, we just do like this, open. We open this like this. So 2 will get cancelled by this and you will left with 3 to the power 1, which is 3. That is why we say that, in short, we say that the square get cancelled with the root, but this is wrong saying that. The basic reason out of this is this. Anyway, so you can put the square of the numerator and denominator one by one. Since it's just a beginning, so I'm taking every step, every short to short concept to make the things literally clear to you. So now you know, I think you are comfortable to write root 3 square is equals to 3 because I've told you the reason right here in the right hand side. Your root 3 square becomes 3. The reason is this. Now you can just add it up. If you got the 3 fractions like 1 over 3, so 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3, how many 1 over 3? 3, 1 over 3. So it's 3, 1 over 3. So it get cancelled and you got the answer 1.
So I hope to find the magnitude is very, very helpful for you. Thanks for watching. So in this question, we have to write two different vectors having the same magnitude. मतलब दो अलग अलग vectors लेकिन magnitude निकलकर same आए. तो ऐसा कुछ आपको सोचना पड़ेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक तो आयोटा प्लस 2j प्लस के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, सॉरी प्लस के कैप. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड जरा एक बारी को निकालो, सो आपको पता चलेगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं ना. तो बस जरा 1 + 4 + 1 इट्स √6, है ना? और रिजॉल्व करके रख लो. हाँ मतलब √6 ठीक है ना? और दूसरा ले लो यहाँ पर बी. अगर मैं बोलूँ अब ये 2 यहाँ लिया ना, 2 कहीं पे और भी ले लो, आगे पीछे कर लो. ले लो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसका भी निकाल लो. देखो रूट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट में इनके स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम आएगी वैल्यू. लेकिन इधर डायरेक्शंस अलग है ना? अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारा x है, ये y है और ये z है ना? क्योंकि अब 3 दे रखे हैं यहाँ पर वेरिएबल, तो 3D की बात हो गई, 3 डिग्री में हो आप. इसको कह देते हैं आई जे, आई कैप, इसको कह देते हैं जे कैप और इसको कह देते हैं के कैप. इधर फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? आपके पास एक्स की रीडिंग तो 1 है, वाई की रीडिंग 2 चली गई और के की रीडिंग 1 है. अब जरा बी पार्ट पर आ जाओ, ये तो था आपका ए का. जरा बी पर आ जाओ. बी बी के अंदर क्या है ना, आपका x2 रीडिंग ले रहा है, y1 रीडिंग ले रहा है, k1 रीडिंग ले रहा है. तो देखो स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं है? ये बी का है. तो इस तरीके से वी कैन से दैट आर vectors are different but the magnitude is coming out the same. Question 3 asks you to write two different vectors having the same directions. अब इसके अंदर उल्टी कहानी है. इसमें वो बोल रहा है राइट टू डिफरेंट, दो अलग अलग वेक्टर लिखो लेकिन उनकी डायरेक्शन अब सेम होनी चाहिए इसके अंदर. तो इसमें हम क्या लेंगे? दो वेक्टर्स ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैप जे कैप के कैप, और बी ले लेते हैं 3i कैप 3j कैप 3k कैप. अब इनके जरा अगर हम डायरेक्शंस निकालें तो क्या निकलेंगे? फर्स्ट का मैग्नीट्यूड निकालो यहाँ पर. फर्स्ट का निकालो. तो पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ए का. तो ये आएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका √3. ठीक है. ऐसे इधर बी का पहले निकाल लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं. 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर. तो दिस विल बिकम योर 9 + 9 + 9 27 रूट. ठीक है. अब हम इसका बोलते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए बोले, तो डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, देख लो. डायरेक्शन निकालने के लिए व्हाट डू वी डू? आफ्टर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड वी डिवाइड द होल मैग्नीट्यूड विद द होल वेक्टर. फॉर एग्जांपल डायरेक्शन इज योर वेक्टर ए ओवर द मॉड ऑफ ए. ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन का. तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा? ए वेक्टर पूरा लिख दो, आई कैप जे कैप के कैप डिवाइडेड बाई √3. अब इसको सेपरेट कर लो. तो आई कैप √3 जे कैप √3 के कैप √3. ठीक है. अब ऐसे करो बी के साथ. तो बी का क्या होगा? डायरेक्शन बी बार ओवर बी मॉड, बी बार मॉड. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं आई कैप जे कैप, हाँ 3 लिया था ना इसमें, तो 3 के कैप ओवर √27. अब इसको सेपरेट कर लो. 3 √27 आई कैप 3 √27 जे कैप प्लस 3 √27 के कैप. तो हमने देखा इसके अंदर जो इसके डायरेक्शंस आ रहे थे वो यहाँ क्या आए, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्शंस विल बी इक्वल टू 1/√3 1/√3 और 1/√3. दीज आर द डिफरेंट.
और इसके क्या आए, आप इसको भी रिजॉल्व करोगे तो इसको भी आपको यही आएगा, 1/√3, 1/√3 और 1/√। तो आपने देखा वेक्टर्स अलग अलग हैं लेकिन इनका डायरेक्शन सेम निकल कर आता है। ठीक है, 20 क्यों आया ऐसा, हमने 3√27 को क्यों बोला कि वो 1/√3 हो रहा है, इसका रीजन देख लो यहाँ पर। क्या मैं 27 को लिख सकती हूँ 3×3×3 रूट, तो रूट में आप पेयर निकाल कर बाहर करते हो, जिसका पेयर निकल बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3 बाहर, अंदर रह गया √3, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 1/√3। दिस इज हाउ यू कैन रिजॉल्व दी √27। So the next question, find the value of x and y so that the vectors this and this are equal. Very very easy, सीधा ही दिखता है इसके अंदर। आपको 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल बनाना है xi कैप और yj कैप से। तो इक्वल कब होगा, जब इसके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं जब उनके हर एक डायरेक्शन के रीडिंग्स कोफिशिएंट सेम होते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 दे दूं और y की वैल्यू को 3 दे दूं, this should be value of y and this should be value of x, तो मेरे दोनों वेक्टर्स सेम हो जाएंगे। दिस वाज द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन। अब in this question we need to find the scalar and the vector component of the vector with the initial point 2,1 and terminal point -5,7। so हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा 2,1 इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया -5,7। तो अब वेक्टर क्या मदद करेगा हमें इन दो पॉइंट्स का यूज करने में। इन दो पॉइंट्स का यूज करने के बाद हम एबल हो जाएंगे कि हम एक वेक्टर को एक स्केलर और एक वेक्टर कंपोनेंट में लिख सकें। बेसिकली अगर आप इन्हें जोड़े तो एक तरीके से आपकी लाइन बनेगी, है ना। अब इस लाइन का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इस लाइन को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेक्टर्स को यूज कर कर इनको वेक्टर्स डायरेक्शंस में यूज कर कर लिखना। तो ये मान लो हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या फिर फॉर्म में लिखेंगे, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप। तो हमारा x2 क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर x1 y1, this is your x2 y2, so you have to write the x2 -5 -2 I cap, and here y2 is my 7, y1 is my 1, so 1 j cap. So you got -7 I cap plus 6 j cap. This is your vector component. Okay, and -7 and 6 is your scalar component. स्केलर में हमारा सिर्फ न्यूमेरल वैल्यू आती है, वेक्टर में हमारी डायरेक्शंस भी आती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे कि माइनस आपको मैग्नीट्यूड वैल्यू में इंक्लूड करना है। अक्सर हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव भी डायरेक्शन के ही तरीके होते हैं लिखने के, कि हमको 7 -7 बोल रहे हैं तो वो लेफ्ट है, +6 बोल रहे हैं तो वो राइट है। लेकिन ये माइनस साइन इस वेक्टर के चैप्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट में ही काउंट किया जाएगा, और वेक्टर कंपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन आई कैप जे कैप के कैप से होगी। तो जब भी आपको बोले कि वेक्टर कंपोनेंट में लिखो, तो आप आई कैप आई एक्स के साथ जे वाई के साथ दिखाएंगे, और जब भी आपको स्केलर कंपोनेंट पूछा जा रहा है तो आप सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखकर आंसर खत्म करें। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। अब हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है स्टार्ट सॉल्यूशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले आप ए लिख दो। ए क्या दे रखा है आपको, ये रहा आई कैप -2 j कैप प्लस 3 सॉरी के कैप। फिर बी आपको ये रहा, ये लिखो यहाँ पे, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो,
-2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और सी है तो ये सी ये रहा, i कैप -6j कैप -7k कैप। ठीक है, ये है। अब आप क्या करो, आई आई को साथ में कलेक्ट कर लो, जे जे को साथ में कलेक्ट कर लो, के को साथ में कलेक्ट करके उनकी पार्टी करवा दो। i कैप -2i कैप प्लस i कैप। ठीक है, अब जे की पार्टी करा दो साथ साथ, -2j -2j एंड दिस प्लस 4j एंड हियर -6j। और के की पार्टी, k कैप प्लस 5k कैप -7k कैप। अब आपके पास ये ट्रिपलेट बन गए, सेम सेम डायरेक्शंस के, सेम सेम कंपोनेंट के, है ना। तो इसको ऐड कर लो, कितना होगा, ये तो मेरे ख्याल 0 आ रहा है, देख लो। और इसको ऐड कर लो, 6 + 2 8, 8 -4 4 -4 आ रहा है ये। और इसको कर लो 5 + 6, ये भी मेरे ख्याल 0 आ रहा है। हाँ 6, 7 -6 इज -1 माइनस। सो आपका इसके अंदर एडिशन क्या आ गया, -4j -k कैप। दिस इज योर आंसर। In this question, you have to find out the unit vector in the direction of the vector. इस डायरेक्शन के साथ साथ आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना भाई, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस √1² प्लस 1², ये आपको वेक्टर दे रखा है आपका, तो इसका हमने मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल दिया। तो आया 1 + 1 + 4, इट्स √6। अब उसके बाद हमसे पूछा हुआ यूनिट वेक्टर निकालो, है ना, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो आपका ए वेक्टर ओवर दी मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या है आपका, i कैप प्लस j कैप प्लस 2कैप। और नीचे आपको लिख दो उसका मैग्नीट्यूड। अब सबको सेपरेट कर लो। सेपरेट करना आता है ना, एक बार इसको इसके नीचे, फिर इसको इसके नीचे, और एक बार इसको इसके नीचे। +2/√6k कैप। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर। In this question, you are asked to find the unit vector in the direction of the vector PQ, ठीक है, where P and Q are the points। एक तो आपके पास ना पॉइंट्स दे रखे हैं, सीधा वेक्टर नहीं दे रखा, घुमा के पूछा है क्वेश्चन। पहले आपको पॉइंट्स यूज करके वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो पहले वो काम कर लेते हैं। लेट्स मेक वेक्टर। जब आपको पॉइंट्स दे रखे हो, और अभी अभी कराया हुआ क्वेश्चन हमने, उधर क्या था ना, दो और 2D में बात हो रही थी, इधर 3D में बात हो रही है, क्योंकि आपको तीन तीन कंपोनेंट दे रखे हैं, उसमें वन वन कंपोनेंट दे रखा है। इसको P मान लो, Q मान लो। इमेजिन दिस इज एज अ लाइन। ओके, कितना काम हो गया। अब हमको पता है कि पी क्यू पॉइंट्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला टेनेशिया क्या है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। जरा लिखो, आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये z2 है। इमेजिन कर लो। तो x2 इज योर 4, 4 - 1 i कैप, y2 is your 5, y1 is your 2, 5 - 2, z2 is your 6, z1 is your 3, 6 - 3 k कैप। तो ये आपका हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, है ना। अब आपसे पूछा गया वेक्टर तो मिल गया, अब हमें इस वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपका जो भी है पी क्यू वेक्टर के फॉर्म में, और नीचे आ जाएगा उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम अब साथ साथ ही निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। और पी क्यू लिख लो यहाँ पर, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई दी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, हाँ, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो
ये आपका रिजॉल्व होकर आएगा 9 + 9 + 9, 9 + 9 × 3 27 रूट। इसको आप लिख लो, ये आएगा 1/√3।